Hello dear students, welcome to Dakshina E-Classroom, and till now we have discussed various things including calculation of pH. Okay, so we have different solutions for that: weak acid, weak base, and strong acid, strong base, then different protic acid, polyprotic acid, and also. Okay, so after that let's see, I told you that we will be discussing about salt hydrolysis. Okay, and today we will be seeing all the combinations what we have. Before going to that salt hydrolysis, let's talk about the dissociation. What? Dissociation constant. Dissociation constant. Dissociation constant for conjugate acid base pair. Conjugate acid base and conjugate acid base pair. Okay, so we will be seeing this conjugate acid. You know what is conjugate acid? जो एक H plus see जिनका difference हो, that's called conjugate acid and base. Okay, you know that. Okay, now let's take that some particular conjugate acid is depicted with Ha. Acid है तो acid को आप क्या कर सकते हो? Ha से दिखा सकते हो, and this will reversibly give you the H plus and a negative ion. A negative one. Clear? A negative one. Okay, so this particular conjugate, this is the acid, and this acid is giving you H plus ion and A negative ion. All are in aqueous medium. Let me write it here. This is in aqueous medium. This is also in aqueous medium, and this is also in aqueous medium. That's fine. And let's write the normal procedure for that. What's that? K values, dissociation constant values. Let's write it here. Okay, so this Ka, for this, since this is acid, dissociation constant is depicted with Ka, so I am writing Ka. Let's write the expression for that: H plus ion concentration multiply with A negative ion concentration and divided by He. Correct? This is clear to everyone. What we exactly doing? We are writing the dissociation constant value for conjugate acid and base. So this is your Ha, this is your what it is, this is your conjugate base. Okay, so what will happen? Let's write the conjugate base here. A negative is the conjugate base, and when it react with H2O liquid, what will happen? It will again give you what? AH plus what? Tell me anyone. AH plus, simple na, AH is, it has taken H, so this will give you OH negative. OH negative ion. So this is what is it? This is the base, and you can see the reaction. Reaction में हो क्या रहा है? If you see the reaction, base क्या होता है? The species which can give OH ion in the solution. So if you see this particular base, this is nothing but the conjugate base of HA acid. Correct? This is HA. HA का कंजुगेट बेस क्या आ गया है? A नेगेटिव है. A नेगेटिव का जब हमने अलग से इसका डिसोसिएशन रिएक्शन देखा, what we saw that yeah, A negative is reacting with water and giving you AH plus OH ion. And see this OH ion, this shows that yeah, we have something called A negative which is basic in nature. So all are in aqueous medium. Please understand it. Now let's write this is basic reaction. I'm writing Kb, that is the dissociation constant for the reaction, and let's write the expression for that. Ha, so let's write Ha, then OH ion, then what is A negative ion? A negative ion. Okay, so we have written two different dissociation constants. So if you see, going to chemical bonding, what you can find, multiply this Ka with Kb, you are getting, let's see क्या होगा, A negative cancel, Ha cancel, so multiply with Ka and Kb will be giving you H plus concentration multiply with OH negative ion concentration, and this is nothing but K. Is this clear to everyone? So for conjugate acid base pair, what is the dissociation constant relations? Dissociation constant relation is very simple. Kw is equal to
sorry, Kw is equal to Ka and Kb. So this is very important and this is true for conjugate acid base. ओके सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसका कभी कभी प्रश्न इस पे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए नॉर्मली मैंने आपको बता दिया. नाउ लेट्स कमिंग टू द मुद्दे की बात, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है और लेट्स डिस्कस अबाउट डिस्कस वेरियस फॉर्म्स एंड वेरियस प्रॉब्लम्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. Hydrolysis means simple addition of water, correct? Hydrolysis means if you are going to chemical, especially in organic chemistry, you will think hydrolysis. Hydrolysis means something just you are adding water. ठीक है, and salt hydrolysis means you are adding water to salt. Okay, before going to that particular salt hydrolysis, let's understand why this salt is coming, how this salt is formed. So you know what, simple salt कैसे form होता है? Simple acid plus what? Base. This acid plus base give you neutralization reaction and this will provide what? Salt and water. This is the basic reaction we have been doing from our 8, 9, 10 class. Okay, so what happens when this acid and base reacts? Give you salt plus water. Okay, now what happens when you put excess of water? So when you put excess of water, this salt will react with water and give you acid and base. Okay, in depends, we have different concepts for that, whether the reaction will come backward or not, or in which case this will not come, in which case it will come, and what is the pH and all those things we will be calculating, don't worry. Okay, so at the side just now I told you that this is the formation of salt, acid plus base giving you salt plus water. So this salt is made up of two things, that is acid and base. And I told you that when you are putting excess of water, this reaction will come backward. ठीक है, जब reaction backward आएगा तो आपके solution में acid भी होंगे और base भी होंगे. And depending on the nature of this acid and base, your solution nature can be decided. अगर आपका acid strong है, base weak है, so you can say that yes, your solution is acidic in nature. Or then you can correspondingly you can say that yes, your salt is acidic in nature और सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर. तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं बता दूं आपको. मैं बार बार आपको हमेशा कहां पे आ जाता हूं? प्रश्न पे आ जाता हूं. क्या प्रश्न पूछा कैसे जाता है? यू विल हैव 4 ऑप्शंस, 4 सॉल्ट्स एंड क्वेश्चन में बी आउट ऑफ दिस विच वन इज एसिडिक सॉल्ट, विच वन इज बेसिक सॉल्ट, विच वन इज कैटायनिक सॉल्ट, which one is anionic salt. Okay, so all these things they have been asking, so don't worry, we will be seeing all those things. ठीक है, तो समझ में आया आपको कि सॉल्ट जो है आपके एसिड एंड बेस से बनता है. सो यू कैन हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. सो व्हाट आर द फर्स्ट कॉम्बिनेशन? कैसा हो सकता है? पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बने? सॉल्ट बने. सो व्हाट आर दैट? लेट्स टेक वी हैव समथिंग कॉल्ड NaCl. NaCl किससे मिलके बना है? NaCl बना है किससे बताइए? NaOH प्लस HCl. ठीक है, so NaCl किससे बना है? NaOH plus HCl. Okay, and after that when we will be discussing about salt hydrolysis, we see that this backward reaction is almost impossible. And I'll give you the reason for that. But what exactly I'm telling is क्या है कि आपका एसिड बेस है और इसमें जो आपने पहला जो तरीका लिया है, पहला जो टाइप है आपका सॉल्ट का, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से जो मिलके एक सॉल्ट बनता है. दिस पार्टिकुलर सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड NaCl and this is almost neutral in nature. This is neutral. क्या है इसका जो नेचर आएगा वो न्यूट्रल होगा. क्यों न्यूट्रल होगा? बिकॉज व्हेन यू आर पुटिंग दिस NaCl इन वाटर, you can expect it NaOH and HCl. Since both are strong electrolyte, both are strong acid and base, what will happen? This will dissociate completely and they will give you NaCl. And see, this is strong. So क्या है? दोनों क्या है? लड़के मर जाएंगे और क्या है? अंत में कुछ नहीं बचने वाला है. So your solution is क्या होगा? न्यूट्रल होगा. So what you can say, when we have salt of strong acid and strong base, you can say that salt is neutral in nature.
क्लियर है? फिर से, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, दैट सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर. Okay, so this particular NaCl salt is neutral nature. What is the different combination we have available? Let's take salt of strong acid and weak base. This is the one of the combination. So can you give me simple example? Let's take that ammonium chloride. Okay, ammonium chloride is the salt. So let's see which is the salt here. We have ammonium hydroxide, a weak base, and this is HCl. HCl is a strong acid. So can you expect what is the expected nature of this salt? If you put in water, you will see that you have something called ammonium hydroxide and HCl. And HCl is strong acid, but this is weak base. So what you can say that which is strong here? HCl is strong. ठीक है, तो जो HCl strong है वो अपना गुण ज्यादा दिखाएगा, and that's why we can say that the solution will be in solution nature is in acidic. Solution nature is acidic, and that's why you can say that this particular salt is acidic in nature. So when we have salt of weak base and strong acid, तो जो स्ट्रॉन्ग है वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा. ठीक है, सो क्या बोलेंगे? सो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होता है. सो यू कैन से दैट दिस पार्टिकुलर अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, दिस इज इन क्या होगा बताइए? दिस इज एसिडिक इन नेचर. ओके, एंड द थर्ड वन वी हैव इज सॉल्ट ऑफ weak acid and strong base. So any example for that? We have one example called, let's take CH3 COOH N. So this is the salt of weak acid and strong. Which one is the acid? Acid is acetic acid. Weak acid pKa 4.8, NaOH, a strong base. When you are putting in the solution, you will see that this guy is having higher strength. NaOH क्या है? ज़्यादा तगड़ा बनता है compared to your CH3COH. So ये अपनी property दिखाएगा in solution. So what you can say that when we have salt of weak acid and strong base, the salt is called basic in nature. So what is this? Salt here is basic in nature. This particular salt is basic in nature. Okay, clear है क्या? Fine. And the last one we are left with this is strong acid, strong base is over. Strong acid and weak base is over. Weak acid and strong base is over. So this is the fourth one we can expect is weak acid and weak base. ओके, सो यहाँ पे क्या है? जरूरी नहीं है कि आपका जो सॉल्ट हो एसिडिक हो या बेसिक हो, डिपेंड करता है कि आपने लिया क्या है. Kb और Ka वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कौन बंदा ज़्यादा तगड़ा है. ठीक है, जो आपने एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट लिया है, तो उस दोनों में कौन ज़्यादा तगड़ा है वो आपको देखना पड़ेगा. उसके आधार पर ये बता पाओगे. यानी कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए हो. जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड लेंगे, सिंस दोनों का जो Ka एंड Kb वैल्यू इज सेम, दैट इज 1.8 into 10 to the power -5. सो क्या है? द सॉल्ट बनेगा दैट इज न्यूट्रल इन नेचर. बट अगर यहाँ पे आपने कुछ और ले लिया, फॉर्मिक एसिड ले लिया और आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, सो फॉर्मिक एसिड का जो प्रॉपर्टी है वो दिस इज मोर एसिडिक देन योर एसिटिक एसिड. ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड. तो क्या है? ये फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो कम ही रह गया है. सो दैट विल बी योर एसिडिक इन नेचर. सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर. तो आपको जो बताना है, आपको बताने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा. ठीक है, व्हेन यू हैव समथिंग कॉल्ड वीक एसिड एंड वीक बेस. सो अगर मान लो आपको लिखना हो तो CH3COH प्लस कौन सा हो जाएगा? Let's take ammonium hydroxide only. So you will have something called ammonium acetate. Again I'll tell you there are different things. All nitrates are soluble in water. All nitrates are soluble in water, जो मैंने बता रखा है. इसकी बातें फिर से जब solubility product कर रहे होंगे तो वहाँ भी करेंगे. So all nitrates are soluble in water. चलिए, तो ये चीज़ अगर समझ में आई कि आपके पास जो है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के से पहले जब हमने सॉल्ट की बात की है अभी,
ठीक है। सॉल्ट एग्जैक्टली क्या होता है, सॉल्ट क्या, जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज प्रोडक्ट प्लस वाटर, एंड दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। एंड सॉल्ट के डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है वो किस एसिड से और किस बेस से बन रहा है। अगर आपका एसिड स्ट्रांग है वे और बेस भी स्ट्रांग है तो सॉल्ट आपका न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों लड़के मर गए हैं। पर अगर आप बात कर रहे हो स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस का, तो स्ट्रांग एसिड लड़ने गया, ये भी लड़ने गया, तो जो तगड़ा था वो बच गया, और इसीलिए क्या है वो अपना नेचर दिखाएगा, ऐसा आप समझ सकते हो। सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, यू कैन से दैट या स्ट्रांग एसिड कैन गिव इट्स प्रॉपर्टी टू द सॉल्यूशन एंड वी हैव acidic solution, or you can say that particular salt is acidic in nature. So अगर आपको पूछे कि ये कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है, तो आपको क्या करना है, ये देखना है एग्जैक्टली वो बना किससे है। ठीक है, सबसे पहले आप पीछे चले जाइए, बैकवर्ड रिएक्शन में जाइए और देखिए एग्जैक्टली वो बना किससे है, कौन से एसिड कौन से बेस से बना है। और जैसे ही आपको ये पता चल गया तो आप आराम से बता सकते हो। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो दोनों में लड़ाई होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस जीतेगा, और दैट्स व्हाई यू कैन से दैट पार्टिकुलर सॉल्ट, दिस सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। Then we are talking about this weak acid and weak base. हमें नहीं पता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमें सबके स्ट्रेंथ को पता करना पड़ेगा या Ke वैल्यू पता करना पड़ेगा, तभी जाके हम बता सकते हैं कि yes this particular acid or this particular base is stronger and that's why the salt is in particular nature. ठीक है, तो पार्टिकुलर इसके लिए क्या है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए होने चाहिए, अदरवाइज आप आराम से बता सकते हो। चलिए ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आई है, अगर नहीं आई है तो आप फिर से आप इसको रिवाइज कीजिए, फिर से आप वीडियो को देखिए, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में कुछ बेसिक डेरिवेशन देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब अभी भी मैंने बताया, हाइड्रोलाइसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। आप क्या करो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो वाटर ऐड कर रहे हो तो क्या है कि बेचारे को जबरदस्ती या बैकवर्ड रिएक्शन में भेज रहे हो, करेक्ट, नहीं चाहता। सॉल्ट क्या है, एक स्टेबल फॉर्म होता नहीं, सॉल्ट क्या है, जब एसिड और बेस रिएक्शन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एक सॉल्ट बना रहे हैं, सॉल्ट इज मोर स्टेबल एंड जो है सो प्रोडक्ट जो है मोर फेवरेबल है कंपेयर्ड टू योर एसिड एंड बेस, तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट क्या बनता है, जो आपके रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल हो, तभी तो प्रोडक्ट बनता है। तो वही जो प्रोडक्ट बन गया, आप क्या करो, प्रोडक्ट के साथ जबरदस्ती कर रहे हो और वाटर ऐड कर रहे हो, अब बोल रहे हो कि भैया रिएक्शन पीछे की तरफ चला जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं तो इसमें भी क्या है कि मान लीजिए कोई सॉल्ट है आपका, आप एक्जेक्टली क्या करना चाहते हो, इस सॉल्ट में आप वाटर ऐड करना चाहते हो, ठीक है, और चाहते हो कि ये रिएक्शन कैसा चले जाए, ऐसा चला जाए, तो एसिड बनाए और बेस बनाए, इसके भी कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट हो सकता है। सॉल्ट की बात करें तो हम जितने भी हमने 4 कॉम्बिनेशन पढ़े, 4 के अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, लेट्स टॉक अबाउट NaCl। सो जब NaCl की बात है सो Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव, ठीक है, दोनों की बातें अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनाएगा आपका NaOH करेक्ट, प्लस क्या होगा H प्लस एंड ये क्या बनाएगा आपका बताइए HCl प्लस OH, ठीक है, सिंपल है। अब क्या है, अब इस चीज को समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली जो मैं अभी बताऊंगा रिजल्ट क्यों ऐसा हो रहा है। NaOH क्या है, बीइंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaOH बीइंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो तुरंत डिसोसिएट करेगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, सिंपल। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या NaCl था, इज नथिंग बट Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव। Na पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव के रूप में रहता है, वो आयंस के रूप में रहता है, ठीक है, सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो आयंस के रूप में रहता है। अब जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड यानी NaOH की बात कर रहे थे तो वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो किस रूप में रहेगा, वो रहेगा आपके Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के रूप में रहेगा, और ये OH नेगेटिव तुरंत रिएक्शन करेगा, यहाँ पे वाटर दे देगा, ठीक है। तो जैसे ही NaOH फॉर्म किया वो तुरंत बैकवर्ड चला गया, तुरंत आपका NaCl दे दी, ठीक है। सिमिलरली HCl के साथ है, HCl जैसे बना, HCl अगेन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द मोमेंट यू फॉर्म क्लोराइड से आपने HCl बनाया
तो क्या हुआ, HCl आपका इस फॉर्म में नहीं रहेगा, एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव के रूप में रहता है, और जैसे इस H पॉजिटिव को OH नेगेटिव देखा, ये तुरंत बैकवर्ड रिएक्शन के वाटर बना दिया। तो क्या है ना कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, कुछ तो समय दीजिए भाई को हमें कैलकुलेशन के लिए, कुछ तो ठहराव लीजिए एक्सपेरिमेंट के लिए, करेक्ट। ये क्या है, हमारा काम था कि सॉल्ट को वाटर के साथ ऐड कीजिए और एसिड और बेस बनाइए, और फिर हम लोग बात करेंगे आगे की, ठीक है। पर जैसे ही हमने इस बंदे को, इस NaCl को वाटर दिया, ये बंदा बनाया था, पर इतना बनाते ही बोला कि भैया मेरे से ना हो पाएगा, मैं तो जाता हूं वापस फिर से रिएक्शन में, और मैं बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट कर दिया। और क्या है कि आपका क्या हुआ, NaOH और HCl रिएक्शन में बना ही नहीं, बना वापस चला गया, बना वापस चला गया, बना वापस चला गया। आप वहां पे एक्सपेरिमेंट के लिए गए नहीं थे कि वहां क्या हो गया, सारा का सारा खेल बर्बाद हो चुका है। तो क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाते। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो बंदे हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमारा काम क्या है, जब भी आप हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हो तो आपका काम होगा कि जो थोड़ा सा समय दे आपको, जो वीक हो, वीक एसिड हो या वीक बेस हो, वही सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करा पाएगा। आ रही बात समझ में, फिर से समझेंगे कि जो बंदा वीक हो, आइदर दैट कैन बी वीक एसिड और कैन बी वीक बेस और बोथ, तो जो बंदा वीक होगा दैट ओनली कैन गिव यू द हाइड्रोलाइसिस। Okay, so this particular strong acid, strong base salt cannot undergo hydrolysis, यानी कि NaCl क्या है, वो हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाता। इनमें से कौन सा है, which of the following cannot undergo hydrolysis reaction? Salt of strong acid and strong base. Clear? Okay. Now, अगर ये समझ में आया कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं जाता है, तो दूसरा हमारे पास तरीका है, दूसरा मतलब है पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ लेते हैं। क्या है वो, वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट, सॉरी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट पढ़ते हैं सबसे पहले। सो लेट्स टॉक अबाउट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग। सो कैन एनीवन गिव मी सिंपल एग्जांपल फॉर दैट? ओके, सो CH3 COO and A. Can anyone tell me what is this? This is sodium acetate, salt of weak acid, strong base. I already told you, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग आयंस और स्ट्रॉन्ग जो भी आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसके आयंस की बात करनी ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा तुरंत बैकवर्ड रिएक्शन चला जाएगा। सोडियम आयन में सोडियम आयन प्लस H2O gave you NaOH plus H plus ion. The moment NaOH formed, it went backward reaction immediately. See, chloride ion plus H2O gave you HCl plus OH ion. The moment H plus ion and chloride ion reaction में बना, again it went to backward reaction immediately. So from this particular inference, what we can say that कि आपको स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उससे कोई मतलब ही नहीं रहने वाला है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन इतनी तेजी से जाएगा, आपको मौका ही नहीं देगा खेला करने का, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा, वी विल ऑल बी टॉकिंग अबाउट ओनली वीक स्पीसीज। जो वीक स्पीसीज सॉल्ट में जो वीक स्पीसीज है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए तो बात करते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड CH3CONA है। ओके, सो ये क्या पता है कहाँ से मिलके बना है, ये बना है आपका CH3COOH, दैट इज द एसिटिक एसिड, एंड NaOH, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। सो हमारे काम की चीज ये नहीं है, काम की चीज कौन है, ये है, इस पे फोकस करना है। क्लियर है? ओके, नाउ सो ओके, सो लेट अस राइट द रिएक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। सो CH3COO नेगेटिव प्लस वाटर गिव यू क्या, CH3COOH plus, can anyone tell me OH ion? Is this clear? सारे aqueous medium में, हाँ। So this is what I have been telling you कि आप क्या करते हो, सॉल्ट में वाटर ऐड करते हो और देखते हो कि क्या हो रहा है। तो हमने सॉल्ट में वाटर ऐड किया और देखा रिएक्शन कैसा चला गया, तो देखा कि एसिटिक एसिड बना है एंड क्या हो गया, आपको OH ion बना। So this is called hydrolysis reaction, ना, hydrolysis। Okay, and this particular reaction I am going to define something called KH, hydrolysis constant। Ka, Kb, I told you that K के बहुत सारे नेम आने वाले हैं। So this is called KH, hydrolysis constant, also
ऑल्सो क्या है, हम डिफाइन और कर रहे क्या जा रहे हैं, H डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसको क्या बोलने जा रहे हैं हम, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। सेम है, अल्फा की तरह है, ये उसी की तरह काम करेंगे, कुछ नया नहीं है इसमें। देखिए कैसे, क्या नया नहीं है, ये वाटर है, दिस इज एक्वस मीडियम है, ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ये आपका एक्वस मीडियम है और ये आपका एक्वस मीडियम में है। सो व्हाट वी नो, लेट अस सी बी द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये लड्डू है, ये लड्डू है, सो लेट अस टेक C into 1 minus H। प्लीज रिमेंबर दिस इज नथिंग न्यू वी आर राइटिंग, जैसे हम अल्फा के अल्फा के लिए लिखा करते थे उसी तरीके से इसको लिख रहे हैं। व्हाट इज H is the degree of hydrolysis, and what you are getting CH, you will be getting CH, you are getting same। let us write that this KH formula, KH is the क्या है आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, so let's write this the what is CH3 COOH OH and concentration divided by CH3 COO negative। okay, and what exactly is this, तो आप वैल्यू पुट करेंगे, CH मल्टीप्लाई विथ CH डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस H हो जाएगा इंटू C हो जाएगा, एक से एक कट्टम कुट्टी। सो व्हाट KH इज इक्वल टू KH, अगेन वी हैव व्हाट यू शुड नो दैट पार्टिकुलर अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस H इज क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि H जो है सो 1 की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। सो यू आर गेटिंग व्हाट, एक C से C कैंसिल हो गया है, so you are getting CH square and that's why you are getting what, H is equal to क्या है, अंडर रूट ऑफ KH by C। ये जो बेसिक थिंग है ये तो आपको समझ में आ गया एक्जेक्टली क्या है, नॉर्मल प्रोसीजर जैसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में किया करते थे उसी तरीके से अभी किए। क्या है, हमने क्या किया, एसिड का जो पार्ट था उसको हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, हाइड्रोलाइसिस कर रहा है मतलब कि वाटर से रिएक्शन कर रहा है। जब वाटर से रिएक्शन कर रहा है, व्हाट हैपेंड एक्जेक्टली, दिस रिएक्शन केम बैकवर्ड and what happened, see simple, C at time t is equal to 0, at is only C 0 0, and when t is equal to equilibrium we have C in 1 minus H CH, and this is the normal procedure we have been writing। and also please remember that in particular hydrolysis equation we are writing two different equations। what is that, first this is the hydrolysis equation and the second is the dissociation equation। सो डिसोसिएशन इक्वेशन भी लिखते हैं, किसका, इसका। सो डिसोसिएशन एक्सप्रेशन लिख के बताइए, CH3 है, COOH है, एक्वस मीडियम है, इट डिसोसिएट्स एंड गिव्स यू एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव एक्वस एंड H+ एंड ओके एक्वस। सो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड Ka, क्या सबको पता है इसको Ka बोलते हैं। ओके, सो दिस Ka का एक्सप्रेशन लिख के बताएंगे, Ka इज इक्वल टू क्या होता है, CH3COO negative plus H+ and divided by CH3COOH। Is this clear to everyone? Yes. Okay. हाँ, अब क्या प्रॉब्लम है कि this KH ना, this KH is creating problem to me। this KH मुझे exactly KH का कोई KE के बारे में तो क्या है कि KE एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, पता चल जा रही है। अब KH जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, तो मैं क्या करूंगा, KH को एलिमिनेट करने का प्रयास करता हूं। ओके, सो कैसे एलिमिनेट किया जाए, भारी संकट है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम का हेल्प लिया और इस एक्सप्रेशन को देखा और इस एक्सप्रेशन को देखा तो मेरे दिमाग की बत्ती जली, और बत्ती जली तो क्या हुआ बताइए, बत्ती जली तो हमने बोला कि लेट अस मल्टीप्लाई Ka विथ KH। तो जब मल्टीप्लाई किया Ka को KH से तो बताइए क्या होगा, कटम कुट्टी कीजिए। यहाँ पे नीचे में एसीटेट आयन है और यहाँ पे ऊपर में एसीटेट आयन है, कट गया। यहाँ पे ऊपर में एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे नीचे में एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, कट गया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर गेटिंग एज H+ ion concentration multiply with OH ion concentration, and that is coming to be Kw। Kw आ गया। So what we know that K multiply with KH is equal to क्या हो गया, Kw हो गया। Very important, ध्यान रखेंगे। And after that this gives you KH, यही तो हमें एलिमिनेट करना था। So KH is equal to क्या हो जाएगा, Kw by K।
वेरी सिंपल, के डब्ल्यू बाई के ए। तो अगर आप उस बंदे को उठा के यहाँ पर रख दो तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी क्या है, अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी, अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी, एंड एट द प्लेस ऑफ के एच वी आर पुटिंग के दिस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन, सो के डब्ल्यू बाई सी इंटू के ए। समथिंग न्यू, कुछ नया कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, जो चीजें हैं उसी को हम करते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले एक्सप्रेशन लिखा, हाइड्रोलाइसिस एक्सप्रेशन लिखा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखा, एंड वी डिफाइंड वन समथिंग कॉल्ड केएच, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। और उसके बाद हमने क्या बोला, एच को डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बोला, और जो बेसिक रिएक्शन उस तरीके से लिखा। उसके बाद ये रिएक्शन हमें क्या है, इस पार्टिकुलर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में दो प्रकार के रिएक्शन लिखने होते हैं, एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, दूसरा डिसोसिएशन रिएक्शन। तो हमने लिखा एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन डिसोसिएशन रिएक्शन लिखा है, और उसके दोनों के एक्सप्रेशन लिखे हैं। ठीक है, पर हमको क्या है कि केएच जो है इसको हटाना है, केएच का काम, केएच समझ में नहीं आ रहा है कि केएच का यूज कैसे करें। तो व्हाट वी डिड, वी ट्राई टू एलिमिनेट दिस केएच, एंड यस वी हैव ऑलरेडी एलिमिनेटेड। सी दिस इज हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H इज इक्वल टू KW बाई C इंटू के। क्लियर, ओके। सो यहाँ तक तो बातें आ रही समझ में, सब कुछ तो मजे में चल रहा था। सो एग्जैक्टली व्हाट, एग्जैक्टली हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें किसी न किसी तरीके से पीएच ऑफ द सॉल्यूशन निकालना होता है, हमें सॉल्यूशन का पीएच निकालना होता है। तो हमें किसी न किसी तरीके से, आपको पीएच का मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड समहाउ H प्लस आयन ऑफ द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। अगर किसी तरीके से इस बंदे को निकाल लिया तो हमें सारा खेला खत्म हो जाएगा। ओके, खेला खत्म तो हो ही जाएगा, तो H प्लस कैसे निकलेगा, देखते हैं, पीछे चल के देखते हैं। H प्लस कैसे निकलेगा, यहाँ पे OH आयन है, सो व्हाट वी नो दैट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, KW बाय OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। याद है ना, H प्लस मल्टीप्लाई विथ OH माइनस दैट इज गिवन टू KW। सो मैंने वही लिखा है, सो KW बाय OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, CH। What is CH? C multiply with H. Where is H? H is here. So what I'm going to do is I'm going to find somehow this value. OH आयन concentration पता चल जाए तो मजा आ जाए। So this is KW by क्या हो जाएगा, C into KA, और C को अंदर लेके चलेंगे तो एक से नीचे चला जाएगा। So what exactly we are getting, C KW by KA। क्या ये सारी चीजें स्टेप समझ में आ रहा है, मैं सारे के सारे स्टेप्स जो हैं एक्सप्लिसिटली आराम से क्लियरली लिख रहा हूं। ओके, सो अगर हमको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाए तो काम बन जाएगी। तो हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट विल हैपन, KW बाय OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। सो KW, व्हाट इज OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द OH concentration, so I'm writing it here, C into KW divided by KA. Okay, 1 power 1 by 2. Okay, so कैसे होगा, this is coming to be, what will be happening, this KW ऊपर चला जाएगा, so KW पे power 1 by 2, और ये KA भी ऊपर चला जाएगा, so KA ऊपर चला जाएगा, fine, divided by C नीचे रह जाएगा। So what directly happening, you have KA KW by C to the power 1 by 2. So this is the H plus ion concentration somehow हमें मिल गया है KA के रूप में, KW के रूप में, concentration के रूप में, यानी कि ऐसे नॉन क्वांटिटीज के रूप में हमें क्या है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। यानी इतने जो हमने जितना जो लफड़ा करने का एक ही काम था कि किसी तरीके से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए जो नॉन वैल्यूज होती है। जैसे KW आपको पता है 10 to the power minus 40, कि क्या है, वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल डिफाइन की जाती है, कॉन्सेंट्रेशन जो आपको इनिशियली प्रॉब्लम्स में दिए जाएंगे। तो मेन मुद्दा क्या था, किसी तरीके से हमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना था जो हमारे नॉन वैल्यूज के रूप में हो। क्लियर, जो कि मैंने निकाल लिया। अब pH इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ log H, सो प्लीज अप्लाई दैट। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ log ऑफ KA KW by C, so 1 by 2, so I'll be writing it what, minus 1 by 2, okay, minus 1 by 2, और क्या हो जाएगा बताएंगे क्या, minus 1 by 2 into क्या है बताइए, log of KA, ठीक है, मल्टीप्लाई है मतलब कि log of KW
और ये क्या है, डिवाइड में है तो माइनस लॉग ऑफ सी। कर सकते हैं आराम से। इस माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे, जब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस, थोड़ा सा ध्यान देखिए इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान दें, माइनस ऑफ लॉग के ए माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, ब्रैकेट में डालिए, इसको भी ब्रैकेट में डालिए, तो व्हाट वी नो दैट हाफ, व्हाट वी नो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज कॉल्ड पी के ए। नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू क्या होता है बताइए, क्या के डब्ल्यू की वैल्यू 10 to the power minus 14, पुट दैट वैल्यू यू विल बी गेटिंग 7। सो क्या हो गया 7 और प्लस लॉग ऑफ सी, करेक्ट, लॉग ऑफ सी। ठीक है, सो क्या आ जाएगा बताइए, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, हाफ ऑफ, sorry, I think log k down, this is come to 14, really sorry, this is 14, okay, so 14 now आप बाहर निकालेंगे, क्या बाहर निकालेंगे, this is coming to be pH का एक फॉर्मूला निकल के आ गया, pH is equal to 7 प्लस क्या हो जाएगा pK प्लस log of C। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्या, जी हाँ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा याद हो जाएगा। वैसे मैं ट्रिक छोटी सी बताऊंगा, ट्रिक के बाद तो मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं, बट प्लीज रिमेंबर pH ऑफ द सॉल्ट हैविंग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 7 प्लस pKa प्लस log of C। ठीक है, pKa प्लस log of C, वन यू नो व्हाट Ka वैल्यू गिवन, कॉन्सेंट्रेशन गिवन, या दो ही वैल्यू पता चाहिए आपको। अगर pH निकालना है तो दो चीजें पता होनी चाहिए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन एंड व्हाट इज आपका Ka वैल्यू एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्या किया है, आपको पता चल गया है कि जब आप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो क्या है कि ये pH क्यों निकल रहा, मैंने अभी भी बताया ना कि वो जो सॉल्ट होगा उसका नेचर होगा, कुछ ना कुछ तो नेचर होगा, वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो न्यूट्रल आपका नहीं होगा, इसलिए कुछ ना कुछ नेचर होगा, कुछ उसका pH निकल के आएगा, या कम हो ज्यादा वो नहीं पता क्या होता है, तो pH निकल के आएगा तो कितना होगा pH, यही हमारा प्रश्न होता है हमेशा कि व्हाट इज द pH ऑफ पार्टिकुलर सॉल्ट। अगर वो आपका न्यूट्रल नहीं है तो pH कैसे निकालेंगे, कैसे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आप पूरा प्रोसेस याद रखो, आपको याद क्या रखना है, ये इस बंदे को याद रखना है, और एक और बंदा कहाँ गया, इस बंदे को याद रखना है। ये जो दो मेन चीज है उसको आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, चलिए इसकी बात खत्म करते हैं। चलिए बात करते हैं जो हमारा अगला टाइप का एसिड है, दैट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सेम, ऑलमोस्ट सेम, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की बातें भी मतलब इसी तरीके से की जाएगी, तो भले से जल्दी से आप लोग धड़ाधड़ नोट कीजिए ताकि जो है प्रॉब्लम ना हो। ओके, so let us take any salt of strong acid weak base। आप लोग अपने हिसाब से बताइए क्या दूं मैं, बेसिक strong acid what we know is HCl and basic weak base we know is something called ammonium hydroxide, दोनों को मिला के सॉल्ट बनाते हैं। so we are going to discuss the third one, that is salt of weak base and strong acid। So let's talk about which one, ammonium chloride। okay, so process is same, क्या है प्रोसेस सेम है क्या, कौन सा प्रोसेस, सेम प्रोसेस, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट आउट व्हिच वन इज द पार्ट, जैसे क्या है अमोनियम क्लोराइड है एंड दिस इज कॉल्ड, इसको आप कैसे बोल सकते हो, अमोनियम एंड क्लोराइड है। दिस क्लोराइड आयन हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये HCl बनाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा और रिएक्शन बैकवर्ड तुरंत आ जाता है, तो अपने काम का चीज नहीं है। काम का चीज है अमोनियम है, जो अमोनियम आयन है काम का चीज है, दैट इज द कैटायन एंड दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस इज कैटायनिक सॉल्ट। कैटायनिक सॉल्ट, सिमिलरली जो पीछे वाला केस था इसमें क्या था, एनायन था, सो यू कैन से दैट एनायनिक सॉल्ट। सो कैटायनिक सॉल्ट मींस व्हाट, दैट कैटायन will act as weak base।
So this particular cation is weak base. Okay, so what will happen? This ammonium ion make the reaction, write the reaction with H2O, and what happens? Let's see. तो ये प्रोसेस शुरू करते हैं. प्रोसेस इज अमोनियम आयन जो हमारा काम का है. क्यों ये क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपको बताया था जब स्ट्रॉन्ग बेस की हाइड्रोलाइसिस कराई थी तो मैंने बताया था कि HCl तुरंत पीछे की तरफ भागेगा. हमारा काम नहीं है. ये बंदा इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये काम का है. सो दिस एक्वस ये क्या है? प्लस H2O क्या है? क्या देगा बताएंगे क्या? This will give you ammonium hydroxide and H plus N. Correct? Let's write. ये है क्या है? हमने क्या लिखा है? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखा है. This is hydrolysis reaction. This is called KH. क्या है KH? This KH is hydrolysis constant. Let us write H. What is H? H is called degree of hydrolysis. So this is simple. C into 1 minus H CH. बेसिक प्रोसेस जो सब जानते हैं. क्या है ये? बेसिक प्रोसेस है. आपको क्या है लिखना होता है? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखना पड़ता है. हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखते कैसे हैं? पुट दैट पार्टिकुलर आयन. क्या आयन? कौन सा आयन? द वीक आयन. विच इज वीक आयन? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, दैट पार्टिकुलर बेसिक आयन, दैट अमोनियम आयन इज द वीक आयन. आप उसको उठा के उसका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिख रहे हो. तो हमने क्या किया? अमोनियम आयन के उठाकर उसका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखा है. अब क्या करेंगे बताइए? सेम प्रोसेस KH का जो तरीका लिखते हैं. KH का एक्सप्रेशन क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई विथ H plus N concentration divided by ammonium concentration. Fine. And let's write it. This is C square H square by C into 1 minus H. So C से C cancel हो गया. And what we are assuming that 1 minus H is approximately equal to 1. ये सारे जो assumptions हैं, जो neglections हैं, जो हम करके रखना बहुत जरूरी है. So what exactly happening? KH. This KH is coming to be CH square, and that's why H is equal to क्या हो जाएगा बताएंगे क्या? H is equal to H यहाँ चला गया, so under root of KH divided by C. ठीक है, ये आगे समझ में. ओके, अब फिर से क्या करने जा रहे हैं? फिर से भी हम वही करने जा रहे हैं. एक बार हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन कौन सा होना चाहिए? डिसोसिएशन रिएक्शन. तो डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब इसका डिसोसिएशन करने वाले हो आप. सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिस NH4OH इन एक्वस मीडियम क्या होगा? डिसोसिएट करेगा एंड इट विल बी गिविंग यू अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. Let us write this is Kb. Base है Kb. Dissociation constant for the base is Kb. Let's write the expression for the Kb. What is this? This is equal to ammonium ion concentration multiply with hydroxide ion concentration divided by ammonium hydroxide concentration. Okay, again मेरा काम ये है कि somehow let's get rid of this KH. And how to do that? Let's multiply this Kb and KH. And what exactly you are getting? You will be getting H plus ion concentration and OH ion concentration, and this is equal to Kw. So please understand it how this ammonium ion at the bottom get cancelled with this NH. तो ये गया. This ammonium hydroxide ion ये कैंसिल किया जा रहा है इसके साथ. बचता क्या है? ये दोनों बचता है. That's why what you say that we have Kw KH multiply with Kb is equal to Kw है. So हमारा काम है इसको भगाना. So KH is equal to Kw divided by Kb. ठीक है. So KH को यहाँ पुट करते हैं. So क्या आ जाएगा बताइए? KH को पुट कर रहे हैं यहाँ पे. So this is coming to Kb by Kw by Kb into C. ठीक है, इस तरीके से आ गया क्या? इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अब हमारा काम क्या है? किसी तरीके से अगेन pH. मुद्दा इज pH. किसी तरीके से pH फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज pH और व्हाट इज द H plus ion concentration? किसी तरीके से अगर आपको ये पता चल गया, ये बंदा पता चल गया,
तो आपका काम खत्म हो गया, पीएच निकालिए, आगे बढ़िए। सो व्हाट इज द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन CH, सो दिस इज इक्वल टू CH। सो CH इज इक्वल टू क्या होगा? C मल्टीप्लाई विथ H, वेयर इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस? अंडर रूट ऑफ KW बाई अंडर रूट ऑफ, this is exactly equal to under root of KW divided by KB into C. So what is CH? This is coming to be, we are talking about H plus ion concentration, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा KW मल्टीप्लाई विथ C बाय KB, ठीक है। तो आपको ये आ गया आपका दिस H plus ion concentration is coming to be KW multiply with C by KB. Now what we know that pH is equal to negative log of H plus ion concentration, and that's why negative log of this value KW C by KB 1/2. Okay, क्या हो जाएगा बताइए? log of KW प्लस log of C माइनस log of B KB. ओके, सो दिस KW वैल्यू अगेन 14 एंड ये 14 को बाहर उठा के ले आएंगे, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, सो क्या हो जाएगा? 7 प्लस, ठीक है, 7 प्लस क्या होगा? हाफ ऑफ 7 प्लस हाफ ऑफ क्या क्या आपने अंदर लेके गया है, सो अंदर लेके माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, so negative में positive होगा, so what is it? This will be your negative log of KB, this is called PKB minus log of C. So this is again the pH formula for your salt having weak base and strong acid. I think if you check it out, I think there is something wrong. If you put negative here, then plus negative log C here, then negative of negative log है, correct? This is what happening here. So you will be getting half of PKW minus log C minus plus PKB, तो हो गया आपका हाफ ऑफ PKW को आप 40 लिखते हो तो क्या हो जाएगा? 7 minus log of C plus PKB. Actually this is the correct formula. Please again make sure that this is the formula you have changed. ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा प्रॉब्लम हो गया, ये अंदर चला जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा। So 7 minus half of log of C plus PKB is the correct formula for the pH of the salt having strong base, strong acid and weak base, strong acid and weak base। चलिए, तो इस चीज को यहीं पे हम क्लास को खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा वीक एसिड वीक बेस का पीएच कैसे निकालना है। उसमें थोड़ा सा हल्का सा उसमें क्या कहते हैं आपका लेंदी प्रोसेस है, उसको भी देख लेंगे। मेक श्योर कि आप इन सारे प्रोसेस को ध्यान में तो रखो ही, मेन चीज आपको याद रखना है ये पीएच और ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली पीछे वाले में भी H प्लस आयन और इसके बारे में बात करनी है और काम यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए ठीक है, तो इसकी बातें हम करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।